Personalized attention to a batch of maximum of 6 students. A dedicated mentor team is there for you to track the progress of the students. We cover the syllabus as per exam schedule and handle the custom request. Now, what are our key features? We basically deal in detailed progress reports. We organize SATs for our students. The students can take unlimited practice tests, and they also have the opportunity to go for subjective tests for school exams. What you have to do, you just have to book a free trial class. For that, you just have to click on the subscribe button, click on the bell icon, and you'll never miss any update. So, dear students, in the last session, that when you were with me, we have discussed about the transportation in plants and animals. We have discussed about transportation that is occurring in our day-to-day life. We go from one place to another by means of car, by means of plane, by means of railways, and if overseas also by the sea also we are traveling by ships. So this is the transportation that we know as of now. But is transportation happening within our body? Yes, it is happening. The food that we eat, it is digested and it is absorbed inside our body and is utilized by each and every part of our body. We are getting energy from that food that we eat. And the most important thing, जो आप medicines लेते हो, when you have a headache, you take a medicine that goes into your stomach, but it relieves you of your headache. So how is it this thing happening? This is happening due to the transportation only. So yes, the transportation is taking place in plants and animals. What ahead we have to learn? What is our objective today? We'll be studying about human heart and heartbeats. If the human heart is not working, we'll not be able to survive. That is the most important thing of our body, human heart. So we'll be discussing about it today. In the previous class, we have studied about blood vessels that are present in our body. Let's give it to you a quick recap of what blood is. If you get a cut on your hand, what happens? What is flowing out of it? A fluid which is called as blood. It is deep red in color. Now, why it is deep red in color? It is due to the presence of RBCs that are there. So, the red color of the blood is due to the presence of RBCs, that is a hemoglobin component which is present in the red pigment that is there. Now, what else is present in blood? WBCs. That are the basically, आपका रक्षक है. They are protecting you from the germs that are entering your body. And third is your platelets. They help the clotting of blood. You have observed that when you get wound or you get hurt, आपका blood निकलता है. Then after some time ऐसा होता है कि वो blood clot हो जाता है. क्यों? क्योंकि आपके ब्लड में प्लेटलेट्स हैं. वन मोर थिंग दैट इज देयर, प्लाज्मा, जिसमें मैक्सिमम क्वांटिटी जो होता है वो आपका वाटर होता है. प्लाज्मा में आपके प्रोटीन्स भी होते हैं. प्लाज्मा में से अगर फिब्रिनोजन प्रोटीन निकाल दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? दैट इज बेसिकली द सीरम दैट इज देयर. नाउ ये तो हो गया ब्लड. अब व्हाट आर ब्लड वेसल्स? Blood vessels are basically the way by which blood is transporting inside your body. So what are the types of blood vessels? There are three types of blood vessels. They are veins, they are arteries, and they are capillaries. Now what are they doing? Veins are basically carrying deoxygenated blood, and what are arteries doing? They are basically carrying the oxygenated blood. And what are capillaries doing? They are helping in diffusion of the substances between veins and arteries. So this is all that we have done in the last session. Now, what is responsible for transportation of different substances in humans? That is blood. Which cell protects us from germs? We have just done a recap now. It is WBCs. Which cell helps in blood clotting? That is present in blood? Platelets. Which type of blood is carried by arteries? It is the oxygen-rich blood. We'll be studying about an exception to arteries, which would be carrying a deoxygenated blood. Pulse rate of normal human being, that is the pulse rate when a human being is in rest position, is 72 to 80 pulse per minute. Now, you might have seen in the homes in the villages, और किसी के घर में अभी भी होगा एक हैंड पंप. सो ये हैंड पंप क्या करता है? पंप करते हो तो इसमें से पानी बाहर निकलता है. दिस इज नॉर्मली देयर इन होम्स एंड फील्ड्स इन विलेजेस ऑल्सो, बट किसी के घर में अभी भी है ये हैंड पंप जिनके घर पुराने हैं.
नाउ डू यू थिंक दिस हैंड पंप इज गोइंग टू वर्क फॉर इयर्स? सालों साल काम करेगा, 20 साल, 30 साल, 40 साल, या हमारे दादाजी के टाइम पे था तो अभी भी हम देख रहे हैं. डू यू थिंक इट वुड बी देयर? इट विल समटाइम्स एग्जॉस्ट, कभी ना कभी तो खराब होगा ना. बट हमारी बॉडी में एक ऐसी चीज है, एक ऐसा ऑर्गन है विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, जो कि पंप करता ही रहता है. पूरी लाइफ हमारी उसके पंपिंग पे डिपेंड करती है. अगर उसने पंप करना स्टॉप कर दिया, हमारी लाइफ इज गोइंग टू स्टॉप. That is what is heart. It is an organ which beats continuously and it acts as a pump to transport blood to different parts of the body. अब ब्लड को हर पार्ट ऑफ बॉडी में जाना क्यों जरूरी है? एक तो ब्लड हर पार्ट ऑफ बॉडी में जा रहा है तो इसलिए वो कनेक्टिव टिश्यू है. ब्लड क्यों जा रहा है सब बॉडी पार्ट्स में? क्योंकि सब बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन चाहिए जो आप ब्रीद इन करते हो. ऑक्सीजन हर बॉडी पार्ट के पास कैसे जाती है? ब्लड में, ब्लड के थ्रू जाती है, ब्लड के साथ कंबाइन होके जाती है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलके जाती है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? ब्लड में. हार्ट होता कहाँ है हमारा? इट इज टू द लेफ्ट ऑफ द चेस्ट कैविटी. इट्स नॉट इन द मिडल. कहते हैं यहाँ दिल होता है, इट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द चेस्ट कैविटी. और कितना बड़ा होता है हमारा हार्ट? सिर्फ हमारी फिस्ट के साइज का. मुट्ठी बंद करो और देखो इस साइज का है हमारा हार्ट. Now, this is the anatomy of the human heart. If you see, it looks very complex, but it is very easy. What is it? Heart has 4 chambers. What is so special about heart? Heart एक चीज का ध्यान रखता है. हार्ट में दोनों तरीके के ब्लड आते हैं. एक कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड भी आता है और ऑक्सीजन रिच ब्लड भी आता है. तो इन दोनों का मिक्सिंग ना हो, इसका ध्यान कौन रखता है? ह्यूमन हार्ट रखता है. हार्ट में हमारे अगर हम बात करें 4 चेम्बर्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है राइट एट्रियम, एक होता है राइट वेंट्रिकल, एक होता है लेफ्ट एट्रियम और एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल. सबसे पहले बच्चों, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है वो कहाँ आता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, दैट इज दीज आर द वेन्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है. कहाँ आता है? राइट एट्रियम में आता है. अब ये वेना केवा क्या होते हैं? जो सुपीरियर वेना केवा होता है वो हमारे बॉडी के ऊपर के पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेकर आता है हार्ट में. और हमारे एब्डोमेन, दिस एब्डोमेन से नीचे के पोर्शन से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आता है वो कहाँ से आता है? वो हमारा इंफीरियर वेना केवा से आता है. इन दोनों वेन से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कहाँ आता है? राइट एट्रियम में आता है. राइट एट्रियम इस ब्लड को भेजता है राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कहाँ जाता है? पल्मनरी आर्टरी के थ्रू जाता है. किसके पास? इट गोज टू लंग्स. इट गोज टू लंग्स. ये लंग्स है आपकी, इसमें जाता है. अब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जब लंग्स के पास गया तो लंग्स ने क्या करा? उसको प्योरीफाई करा. लंग्स के पास आया कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और लंग्स ने उसको प्योरीफाई करा, ऑक्सीजन रिच ब्लड कर दिया. अब ब्लड तो अच्छा हो गया. अब ये ब्लड कहाँ जाएगा? ये ब्लड इस पल्मनरी वेन के थ्रू कहाँ जाने वाला है? इट इज गोइंग टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट. लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा. लेफ्ट वेंट्रिकल उसको कहाँ भेजेगी? हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी जिसका नाम होता है ऑर्टा. व्हाट इज द नेम ऑफ द बिगेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी? ऑर्टा. यहाँ से ब्लड कहाँ आएगा? यहाँ से ब्लड जाएगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को. दैट मीन्स जो हमारे हार्ट से एक वेन और एक आर्टरी कनेक्टेड है उसमें उल्टा काम होता है. बाकी सब आर्टरीज जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं और वेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती हैं. लेकिन हमारे हार्ट से जो चीज कनेक्टेड थी, कौन सी? पल्मनरी आर्टरी, उसने कौन सा ब्लड कैरी करा? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, विच इज एन एक्सेप्शनल केस. पल्मनरी वेन ने कौन सा करा? ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करा. अगेन दैट इज एन एक्सेप्शन. सिर्फ ये 2 आर्टरी और वेन अलग कैरी करती है, बट आर्टरीज नॉर्मली कौन सा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजन रिच ब्लड. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट. नाउ हार्ट हैज 4 चैम्बर्स. द अपर 2 चेम्बर आर कॉल्ड एज एट्रिया. हम उनको एट्रिया बोलते हैं, बट अगर स्पेसिफिकली नाम देना है तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम. नीचे के जो 2 चेम्बर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स. दैट इज द राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल. जो हार्ट की आउटर लाइनिंग है उसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल.
Now, what happens if carbon dioxide rich blood and oxygen rich blood get mixed with each other? Heart makes sure they don't get mixed with each other. But if they get mixed with each other, that means the positioning of artery is not proper inside the body. The person has to undergo open heart surgery. This case has happened with one of my family members. That is why I know. That means अगर आपके आर्टरी की पोजीशन प्रॉपर नहीं होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आपकी बॉडी में ही घूमता जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल नहीं हो रही है, जिससे कि प्रॉब्लम हो सकती है. तो अगर आप चाहते हैं, it is not in our hand obviously, so we need to notice whether the things are happening properly. जो blood rich in carbon dioxide है, the carbon dioxide has to be expelled from our body and oxygen has to transport inside our body to each and every cell of our body. तो to make sure that has to be proper. और इसका ध्यान कौन रखता है? Heart, क्योंकि उसके 4 chambers होते हैं. If blood rich in both concentration get mixed, then it will disturb the human circulatory system, as this will also combine carbon dioxide to combine with hemoglobin, which leads to formation of carbon hemoglobin. This ultimately leads to the death of the person. The early the better. जितना जल्दी पता चल जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो रहा है, उतना अच्छा है. अदरवाइज इट कैन लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन ऑल्सो. सो द ब्लड शुड नॉट बी मिक्स्ड. Now, human heart में 2 चीजें हैं. 2 atria that are the upper part, 2 ventricles that are the lower part. Now, to avoid the mixing of oxygen-rich blood with carbon dioxide-rich blood, the heart is divided into 4 parts. That is the atrium. The upper parts are called as atria and the lower part are called as ventricles. Now, atrium are the upper 2 parts, this and this part, and ventricles are the lower parts. Now, keep your hand on the left side of your chest. What do you feel? Tuk 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 hoti hai na? Even doctor use stethoscope to measure that heartbeat. So what do you feel? You feel the heart is beating. The wall of the chambers of heart are made up of muscles which contract and relax rhythmically. The rhythmic contraction and relaxation make a heartbeat. ऐसे 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 पंप हो रहा है. तो एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन, एक हार्टबीट. एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन मिलके एक हार्टबीट बनती है. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज हार्टबीट. नाउ डॉक्टर्स हाउ कैन दे चेक? हम तो ऐसे कर लेते हैं. डॉक्टर्स कैसे चेक करते हैं हमारी हार्टबीट? स्टेथोस्कोप होता है, उससे चेक करते हैं. तो जितनी आवाज हमें यहाँ फील होती है ना, उसके मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर में आवाज उनको फील होती है. दे आर एबल टू फील द साउंड वेरी लाउड इन देयर ईयर्स बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज स्टेथोस्कोप. Now, what is the relationship between heartbeat and pulse rate? This is an interesting one. Heartbeat, ये जो हमारा heartbeat है और ये pulse rate है, are they related? Yes, they are related. Because the heartbeat and pulse rate tell us the same information, which is how many times heart beats in a minute. जब हमारा heart beat करता है ना, तो blood जो होता है artery से flow कर रहा है oxygen rich blood. And this is what ये आप artery पे हाथ रख के feel कर रहे हो, आपका pulse rate. So what is happening? ये पल्स रेट और आपका हार्ट बीट दे आर सेम. आप किसी भी तरीके से मेजर कर सकते हो. सो ईच हार्ट बीट जनरेट 1 पल्स इन द आर्टरी एंड पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट्स द हार्ट बीट. आपकी एक हार्ट बीट यानी कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, उससे एक पल्स जनरेट होती है. तो पल्स रेट 1 मिनट में कितनी पल्स है वो आपको बताता है कि आपका हार्ट बीट कितना है. So the rhythmic beating of various chambers of the heart maintains circulation of blood and ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हमारे हार्ट की बीटिंग रिदमिक होनी चाहिए. इट हैज़ टू बी सिंक्रोनस, प्रॉपर होनी चाहिए. इससे ये पता चलता है कि ब्लड में ब्लड के थ्रू सारी सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में सही है, बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा है सब सामान. तो ये दैट शोज अस दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग प्रॉपरली इनसाइड आवर बॉडी. नाउ ये तो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया. हमारे बॉडी में है ब्लड जो कि सर्कुलेट कर रहा है सब्सटेंसेस अलग अलग बॉडी पार्ट्स को. अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, स्पॉन्ज एंड हाइड्रा. उनकी बॉडी में ब्लड होता है या कोई और सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? उनकी बॉडी में सब्सटेंसेस कैसे सर्कुलेट होती हैं? ये वो एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी में कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता. इनकी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो वाटर से होती है. फूड या ऑक्सीजन जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो वाटर के थ्रू होता है. जैसे ही वाटर निकलता है उनकी बॉडी में से बाहर, वैसे ही वो वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर निकलता है. इसीलिए इनकी बॉडी में कोई भी सर्कुलेटरी फ्लूइड नहीं होता जैसे कि ब्लड. नाउ व्हाइल परफॉर्मिंग
their function, cell release certain waste products. Their products are toxic and need to be removed from the body. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी के ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हर सेल जो है इट इज़ परफॉर्मिंग इट्स लाइफ प्रोसेस, इट्स फंक्शन, तो हर सेल जो है कुछ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करता है. ये वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रॉपरली बॉडी के बाहर निकलने चाहिए, क्योंकि अगर वो बॉडी में रहेंगे देन दे आर टॉक्सिक फॉर द बॉडी. सो इफ समवन आस्क्स यू व्हाई द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, बिकॉज दे आर वेरी टॉक्सिक एंड दे हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. द वेस्ट जो है वो बॉडी में नहीं रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जब वेस्ट बॉडी से रिमूव होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, इसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन. तो वेस्ट अलग अलग फॉर्म में निकलता है, जैसे सॉलिड की फॉर्म में फेशियस से निकलता है, लिक्विड की फॉर्म में यूरिन हो गया, और गैस की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया. तो यू नो द वेस्ट कैन बी रिमूव्ड इन 3 ways. Now what is excretory system? The parts that are involved in excretion form the excretory system. यानी कि जो भी पार्ट्स हमारे एक्सक्रीशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व है उनको हम बोलते हैं excretory system. Now what is excretory system? Kidneys are there. Then from kidneys pipes are coming down to the bladder, that is ureter. जब ये bladder full होता है then we feel the urge to go for urination, और यूरिन कहाँ से बाहर आता है? यूरेथ्रा से बाहर आता है. Now this is what the red color one is your renal artery and the blue color one is your renal vein. रीनल वेन कहाँ से आ रही है? वेना केवा से. और रीनल आर्टरी कहाँ से आई? ऑर्टा से, बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू किडनी, दैट इज व्हाई वी टर्म देम एज रीनल. ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी वेसल में से फ्लो होता है? आर्टरी में से. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट? इट इज बेसिकली हैविंग बोथ टाइप ऑफ ब्लड्स, बट इट इज गिविंग द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन, एंड देन when the blood from the lungs, oxygenated blood from the lungs comes back to the heart, then it basically pumps it to different parts of the body by means of the largest artery, that is aorta. Why it's necessary to excrete waste product? It's necessary to excrete waste products because they are toxic. Rhythmic expansion and contraction of heart is called as heartbeat. The animals without circulatory system are sponge and hydra. Now, these are the fun facts. During average lifetime, the human heart will beat 2.5 billion times. That is, अगर 1 मिनट में देखें और हम एवरेज माने कि 70 to 80 बीट्स पर मिनट है ह्यूमन बीइंग के, तो लाइफ टाइम उसकी कंसिडर करें तो 2.5 बिलियन टाइम्स ह्यूमन हार्ट बीट करता है. यू कैन सी हाउ मैसिव इट इज. Larger animals tend to have a slow heart rate than smaller animals. वैसे भी जो लार्ज रहते हैं उनका हार्ट रेट इज slower than the smaller animals. Thumping sound associated with heartbeats are caused due to the walls between the chambers of the heart closing. जो walls होती हैं हार्ट के चैम्बर्स के बीच में, उनकी क्लोजिंग की वजह से थम्पिंग साउंड आती है, which we are hearing. What is the challenge for the day for you? List some of the animals surrounding your locality, group into different groups that excrete ammonia in gaseous form. They excrete uric acid in the pellets and that excrete urea in the form of urine. Urea in the form of urine, हमारे यूरिन में भी यूरिया होता है present. Actually uric acid बढ़ जाता है, that means we have some problem. So uric acid होता ही है. अमोनिया की क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो जाए, दैट मीन्स अगर किसी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, दे आर सेइंग अमोनिया इन गैशियस फॉर्म, आई एम जनरली डिस्कसिंग इट विद यू. अगर किसी भी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज नॉट एबल टू पास फेसेस, दैट इज सॉलिड वेस्ट फ्रॉम हिज बॉडी. उसकी बॉडी में अमोनिया का कंटेंट बढ़ जाता है. That means that person needs urgent medication. So मतलब अमोनिया कब बढ़ता है हमारी बॉडी में? जब we are severely constipated for let's suppose 2 to 3 days. So this is what you have to check. Now let's do an activity. Okay. Identify the functions of the given chambers. What is the function of the left atrium? Left atrium means ये राइट था और ये लेफ्ट था. लेफ्ट में क्या आता है? कौन सा ब्लड आता है? राइट से बात करते हैं. चलो, राइट एट्रियम में क्या आता है? राइट एट्रियम में कौन सा आता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. और लेफ्ट एट्रियम में कौन सा आता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड. ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ से आता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में. और राइट एट्रियम में कौन सा आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा से आता है. लेफ्ट अब राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया,
तो राइट वेंट्रिकल में भी वही जाएगा ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आया। उसके बाद वो गया कहाँ, पल्मनरी आर्टरी में, और आर्टरी में जाके वो लंग्स के पास जाके ऑक्सीजनेट होके आया। ऑक्सीजनेट होके कहाँ आया, वो लेफ्ट एट्रियम में, यानी कि उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ। अब लेफ्ट एट्रियम ने क्या करा, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दे दिया ताकि वो आगे ऑर्टा में चला जाए। सो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द स्लाइड्स, what next, what we have learned today is what is a human heart and what are the heartbeats.